Hello viewers, this is VB Kulkarni with my new video competency based questions on the topics polynomial class 10th mathematics. The question is like this: Radha, an inspiring landscape designer, is tasked. See, she is a landscape designer. She is a landscape designer and she is tasked with creating a visually captivating full design. उसको बोला है कि एक अच्छा सा तुम क्या करो, विजुअली कैप्टिवेटिंग डिजाइन तुम बनाओ. ऐसे किसको बोला गया? राधा को बोला गया. That incorporate a unique arrangement of fountains. You make a design in such a way that you should have a unique fountains होना चाहिए. Fountains I hope you understand. पानी का जो आता है ना वो प्रिंसिपल फाउंटेन, ऐसा उसको बोला गया. The challenge entails arranging the fountains in such a way that water is thrown upwards. Now of course against the gravity water should be thrown. ये उसका चैलेंज है. किसका? राधा का. तो देखिए ये सारे जो है ये दिस इज ऑल बैकग्राउंड. एक्चुअली द क्वेश्चन इज नेक्स्ट. तो मगर क्या है क्वेश्चन, ये देखिए आप. फॉर्म द शेप ऑफ अ पैराबोला. You have to throw the water in such a way that it should form the shape of a parabola. You can see here the water is thrown in the shape of what? Parabola here. This is her challenge given to her. The graph of one such parabola is given below. Now here comes a mathematical part. The height of each fountain rod above the water level is 10 centimeter. See, above the water level, this height of the rod. This is the rod here. That is how much? 10 सेंटीमीटर. तो यहां से उसको पानी ऐसे फेंकना है above the water level. Okay. So the equation of the downward facing parabola representing the water fountain is given by P at x is equal to minus x square plus 5x minus 4 based on the above information. Now in the first part of the question, we were talking about the Radha. She was an aspiring engineer. She wanted to design a fountain. All those things were there. In the second part, you have been given a parabolic equation, a quadratic polynomial. Now comes the question. What is the question? Based on the above information, answer the following question. अब आपको आंसर करना है क्वेश्चन को. तो क्या क्वेश्चन है? Let us see. तो क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. Now let us see what is find the zeros of the polynomial p at x from the graph. Now you see the graph here and see the graph and tell me what are the zeros of the polynomial. What are the zeros of the polynomial? I have given you the hint here. मैंने hint आपको दे दिया already. What is the? Yes, he is right. क्या बोल रहा था तुम? 1. 2 कहां से आएगा? 2 कैसे आएगा? लेकिन एक्स एक्सिस पे कहां पर है जी? 1 है. 1 0 बोल रहा है. दूसरा क्या है? So what are the zeros? The point of intersection of the graph on the x axis is the 0. ग्राफ जो x axis के ऊपर जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम 0 बोलते हैं. तो x axis पे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1. और दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो from find the zeros of the polynomial. So the zeros of the polynomial are 1 and what is it? 4. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ये हो गया हमारा what is it? फर्स्ट पार्ट. If the first part means first question हो गया. The answer is what? 1 and 4 को बता यार. तो क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना सिंपल. The only thing is what happens is most of this time children see the question and give away. छोड़ देते हैं उसको, अरे यार नहीं आएगा हमसे. ऐसा मत करो. क्वेश्चन पढ़ लो पूरा. तो एक पार्ट हो गया 1 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? लेट अस सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट व्हिच वाटर अटेन्स द मैक्सिमम हाइट. वाटर का मैक्सिमम हाइट कहां पर आ रहा है? जरा देखिए तो बच्चों. देखिए दिस इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम हाइट इज देयर. वेयर मैक्सिमम हाइट इज देयर, दिस इज द पॉइंट. तो आप देखिए कि x की वैल्यू कितनी है यहां पर. It is exactly when it reaches the maximum height,
The value on the x-axis is how much? 2.5. So find the value of x at which the water attains the maximum height. The value of x at which water attains the maximum height is 2.5 units. 2.5 अगर उन्होंने यूनिट्स दिया है तो मीटर है, तो यहाँ पर 2.5 इज द करेक्ट आंसर। जब वो मैक्सिमम हाइट रीच करता है तब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली है, और 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली है मींस वो कितना है? 2.5 है। ओके, so this is the second question. So the maximum height, x is the maximum height attained by the water stream from the above water level of the pool. Then find the value of the equation of the downward facing parabola representing the water fountain given by. देखिए हाइट का इक्वेशन आपको ये दिया है तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? ऑलरेडी हम जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2.5। तो एक्सैक्ट 2.5, और 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/2। कैन आई राइट लाइक दैट? 5/2 लिख सकता हूं क्या मैं? तो 5/2 प्लस हाउ मच? 5 इंटू 5/2 माइनस हाउ मच? 4। तो हाइट कितना होगा? कितना होगा? -4। 5 इंटू स्क्वायर, यस राइट। तो x माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और 5 इंटू 5/2 -4। तो दिस इफ आई कैलकुलेटेड, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? ये 25/4 प्लस हाउ मच? 25/2 minus 4. 4 means 4/1. Is it okay? Now what is the LCM here? If I take the LCM, then 4 is the LCM. Here is into 2 and here is into 4. Is it okay? तो इसको कीजिए आप, तो this is equal to -25 plus 25 plus 2 is how much? 50 minus how much? 60 minus 60। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, -25 प्लस -16 कितना होगा? -31 -41 -41 प्लस 50 कितना होगा? 9। So 9 divided by how much? 4. So this is equal to how much? 4 to the 8. So carry 1 again, 4 to the 8 5 the 20. Is it right? ना हमें काम करते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। ओके, मगर एक बात याद रखो कि यहाँ पर भी ये कितना दिया है आपको? मैंने बताया था आपका कितना दिया है? वो 10 मीटर दिया है। तो ये 10 मीटर प्लस ये कितना होना चाहिए आपका? 2.25। तो कितना होगा टोटल हाइट? कितना होगा? देखिए नल का भी तो हाइट है ना उसका। वाटर लेवल कितना है? वाटर लेवल के ऊपर नल है, तो वाटर लेवल से ऊपर बोला है, तो वाटर लेवल का भी तो उसमें आ जाएगा। कितना ऐड होगा उसमें जो वाटर लेवल का हाइट है वो उसके अंदर ऐड होगा, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ तक मीटर जो है वो नल का हाइट है, और ये जो आंसर तुमको आया है वो क्या है? 2.25 मीटर में आया है। और प्लस अगर आप टोटल हाइट अगर आपको चाहिए तो हाइट विल बी इक्वल टू 2.25 प्लस जो नल का हाइट है 10 सेंटीमीटर वाला, उसको अगर मैं मीटर में कर लूं तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये होगा 0.1 मीटर 10 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2.35 मीटर होगा। व्हाट इज दैट? मैक्सिमम हाइट होगा। इसका मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल। फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, पूल का वाटर लेवल से पूछा है आपको, नल के ऊपर से नहीं पूछा है। नल भी तो 10 सेंटीमीटर का है, और आपको हाइट कहां से पूछा है? वाटर लेवल, और वाटर लेवल तो पानी नीचे है, तो पानी है, पानी के ऊपर नल है, और नल के ऊपर से पैराबोला गिर रहा है। हमको हाइट कौन सा पूछा है? वाटर लेवल से पूछा है। तो वाटर लेवल से पूछा है तो ये 10 सेंटीमीटर का जो है
तो 0.1 मीटर होगा। तो टोटल हाइट कितना होगा? 2.35 मीटर्स। हमारा राइट। और मैं आपको फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what point or points on x-axis the height of the water is 2 मीटर above? 2 मीटर above कब होगा? यानी ये जो हाइट है तुम्हारा -x² + 5x - 4, ये जो तुम्हारा हाइट है, ये जो तुम्हारा हाइट ऑफ वाटर है, वो 2 मीटर कब होगा? यानी when this will be equal to 2, when this will be equal to 2, ये 2 मीटर हाइट कब होगा? इसका हाइट, this is the height, ये 2 मीटर कब होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? -x² + 5x - 4, ये -2 को इधर ले लेंगे तो क्या होगा? +2 को इधर ले लेंगे तो क्या होगा? -0, राइट। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर -1 कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा x² प्लस की जगह पे क्या होगा? -5x -4 और -2 कितना होगा बच्चों? -6, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो ये कितना होगा? +6 इक्वल टू हाउ मच? 0। Am I right? I have taken -1 common factor. So now this will be equal to x² - 5x + 6 is equal to 0 divided by -1. इस -1 को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, राइट। तो now it's a quadratic equation and can you tell me what are the roots of it? इसका रूट्स क्या होगा? What are the roots of it? -3x और क्या राइट लगा? -3x और -2x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा x इंटू ब्रैकेट x - 3 और -2 इंटू ब्रैकेट x - 3। और फिर से कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? x - 3 इंटू x - 2 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट को अगर गुणाकार करने पर 0 होता है, तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। यानी x - 3 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसी बात है तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 और x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब क्या निकला सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या निकला सर? इसका मतलब ये निकला कि अगर x की वैल्यू, अगर x एक्सिस पर 3 और 0 होता है या फिर 2 0 होता है, उस समय जो तुम्हारा पैराबोला है उसका हाइट कितना होगा? 2 मीटर्स होगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि सपोज इफ आई ड्रॉ दैट पैराबोला लाइक दिस, and when the coordinates of x are 3 and what is it 2 0 और 3 0 है, उस समय, उस कंडीशन में, at that condition when the parabola touches the x axis at 2 0 and 3 0, at that time the height of the parabola will be how much? 2 meters होगा। That is the meaning of it. Height will be 2 meters. Okay? Am I right? समझ आ गया आपको? Now can you tell me why the symbol is negative here? Why the symbol is negative here? -x² क्यों है यहाँ पर? कौन बता सकता है? मैंने आपको बताया था इसका जवाब। हाँ, यस, पैराबोला इज डाउनवर्ड। पैराबोला इज डाउनवर्ड।